Hello class 9 students, how are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision. Today we are going to begin our course on lines and angles. As many of you know, this chapter belongs to a branch of mathematics called geometry. If you know this branch of geometry, we already began this branch. In our last lecture, we talked about Euclidean geometry. If you remember that, in Euclidean geometry, we first talked about what do we understand by this branch called geometry, how it evolved from Egyptian civilization. We talked about the work of great mathematicians and philosophers like Thales, Pythagoras. We also talked about who was Euclid, what was so special about Euclid, what exactly his work was. We talked about his amazing, one of the most powerful work in the history of mathematics, the elements. We talked about how this book, the elements, revolutionized this whole branch of mathematics and how it changed the way mathematical world sees. Then after that, we talked about the work in details about Euclid and what he exactly was doing. What exactly Euclid was doing with his work. As you know, Euclid was a mathematics teacher in 4th century BC in a city called Alexandria, in a place called Alexandria in Egypt, if you remember. And what he did, he didn't do anything new. What he was just compiling, he just compiled everything what had been discovered or invented till 4th century BC by numerable mathematicians. So he did a compilation of a systematic evolution in which he began his journey with definitions. Then he talked about common truths, which we call it as axioms. Then he talked about the postulate. Postulate and axiom is almost one of the same thing, but axiom is something which goes for the whole mathematical department, but postulate is those truths or those common notions which involves whose boundary remains with geometrical branch only. And then he started working on propositions. He had this 13 parts, or 13 books, you can say, or 13 chapters, whatever you say. And some of you also requested the soft copy of Euclideans, the elements, and I forwarded the first volume to all the students who requested for the copy. Now, before we go into the course lines and angles, just let's have a recap so that you again go back and really see that what were the axioms of Euclid, what was the postulate of Euclid, and what was his propositions, right? So he talked about geometry is the knowledge. If you see, I recommended these two amazing books as well, both by D.K. London. If you remember, I have already recommended two books, one about Albert Einstein and the other about Nelson Mandela. Now, these two books again is an amazing collection of the mathematical history and the scientific histories. So if you are interested in these two books, you can actually go into Amazon website and buy these two books. Or you can also, if you want to have a look on the soft version, the soft copy of these two books, then I do have the soft copy of both the books. So if you need to go through these two books, then you can actually replace the request to me and I'll send you the soft copy so that you can see whether it's worth buying it or not. Now, if you look into the Pythagoras, there's an amazing quotation written there. Geometry is the knowledge of the eternally existent. Geometry is the knowledge of what always exists, by Plato. Both of them, all of you know that they were the great philosophers, right? Now, geometry, as you know, it's a little different from algebra. Algebra was more of a deductive reasoning where you had to go into finding the unknowns, where geometry is more of a visual approach, but it comes with a challenge. It seems easy at the start, at the beginning, but if you don't understand the right evolution, right systematic thing, that from where things are starting, you will always get lost. So it's a right time in class 9 that you get hold of this beast in a very nice way, in a very consistent way, so that you don't face any problem in geometry. It is said that those who can master geometry can master any subject in the humanity.
So it's not only about just if you can master mathematics, you can master law. If you can master, if you can master geometry, you can master law. If you can master geometry, you can master medicine. If you can master geometry, you can master anything. This is the whole crux. So geometry is very systematic, very logical, and the credit goes to Mr. Euclid. If you remember, I talked about Mr. Thales as well. If you've forgotten, you need to go back and read about this person. Again, we also talked about Pythagoras, right? You have been hearing about him. And then we talked about Euclid, and we talked about these 5 postulates. You can see we'll be talking again in lines and angles. So any 2 points can be joined with a straight line segment. Any straight line segment can be extended to infinity, which means it can be extended both sides. Given a center and a radius, a circle can always be drawn with the center and this radius. All right angles are equal to one another, and if x plus y is less than 2 right angles, then the line must eventually meet on the side, right? If they are like if x plus y equals 180 degree, then both the lines will become parallel. You know that, right? So in the course of lines and angles, let me give you the overview of this course. So we have divided this whole course in 2 sections, section 1 and section 2. In section 1, you will be dealing with the axioms. We will be looking into the axioms again. Then we'll be talking into the definitions, and then type of angles, then theorems and some illustrations. So this is what we are going to cover in section 1. Let's see how many things we can cover in lecture 1. Then you will have a quiz on that, and then you will have section 2 where you will be getting more definitions, and then how to measure angles and theorems, illustration and problem solving. So this chapter, it looks easy, but if you forget, if you miss the continuity, if you jump from one point to another, you may get lost and you may won't be able to prove things if you don't know which things come first. So order is very important. So it's the right time to look into the definition, to look into the axioms, to look into the theorems and understand. जो बच्चा इसको अभी फॉलो नहीं कर पाएगा राइट इवोल्यूशन में तो उनको बड़ी दिक्कत आएगी आगे चल के. उन्हें सब कुछ दिखेगा कि ज्योमेट्री आसान है, लेकिन फिर भी देखेंगे वो नंबर खो दे रहे हैं, नंबर लूज कर रहे हैं. तो हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे नंबर हम अपने स्कूल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हम सिस्टमेटिकली नंबर कैसे ले सकते हैं. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग मार्क्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप जब सिस्टमेटिक समझ जाएंगे तो आप बड़े आराम से मैथ्स में एक आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप मिलेगा. फिर उसके बाद आपको मैथ्स कभी मुश्किल नहीं लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सियम. सो पहला एक्सियम के बारे में आप जानते हैं, द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ. थ्योरम और एक्सियम में क्या फर्क होता है? एक्सियम को आपको प्रूव नहीं करना होता है. थ्योरम इज नॉट सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट. एक्सियम्स आर सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट, मतलब वो खुद अपने में एक सच है. थ्योरम्स आर नॉट कंसिडर्ड सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट. उसको सच बनाने के लिए आपको प्रूफ करना होता है. तो थ्योरम नीड्स प्रूफ, एक्सियम्स डू नॉट नीड प्रूफ. एक्सियम ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वर्दी, राइट? देखते हैं पहला एक्सियम क्या है. अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेंथ. हमने यूक्लिड इसमें बात ऑलरेडी कर रखी है. अगर ये आपका लाइन है तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज अ लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इट हैज infinite length. Line can be extended to any desired length which you want. A line is a collection of infinite points. आपको दूसरा एक्सियम ध्यान रखना होगा कि कोई भी लाइन अगर बनता है तो वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एक, ये सब क्या है, ये एक पॉइंट्स है, ये कंटिन्यूटी ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स है जो लाइन हमें बनाती है. तो लाइन का जो अगर आप पूछोगे सबसे छोटा कंपोनेंट क्या है, पॉइंट. पॉइंट को ही जब आप एक साथ रख देते हो तो या तो लाइन बनता है या तो कर्व बनता है. या जैसे अगर मैं इस तरीके से अगर दिखाऊं आपको, जैसे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, इनफॉर्मली बात करूं, ये आपका एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट आपका बी है, ए और बी. लेट्स से आपको ए से बी पहुंचना है तो आप ऐसे होके जा सकते हो. तो ये बेसिकली आप देख रहे हो क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो. तो आप देख रहे हो ए से बी जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड लाइन, और जो दूसरा पाथ है उसे कहते हैं कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन, राइट? अब जो भी कर्व हो, चाहे वो कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, वो किससे बना होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो ये एक्सियम है, अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स.
एक्सिम नंबर 3 क्या है? थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इनफिनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन। अगर मैं कहूं ये आपका एक पॉइंट है, तो आप बताइए यहां से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा लाइन देखिए आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा लाइन आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, चौथा लाइन आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, चौथा लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे करके आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे करके आप इनफिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं, इनफिनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये आपका गिवन पॉइंट था, थ्रू अ गिवन पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइंस। एक टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा जो आगे डेफिनेशन में, ये सारे लाइंस जो हैं डिफरेंट कलर्स के जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये सारे लाइंस को कनकरेंट लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकरेंट लाइंस। आगे डिस्कशन होगा इस डेफिनेशन पे। तो कनकरेंट मतलब two or more than two lines passing through one common point. Two or more than two lines, two or more than two lines passing through one common point are called concurrent lines. ये भूलना नहीं है। तो ये तीन एक्सिम्स आप सीख चुके हो। Given two distinct points, there is one and only one line that contain both the points. तो अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इससे आप एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा लाइन नहीं बना सकते जो इस दोनों पॉइंट से पास करे। सो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन। अब आप जो भी लाइन, अब इसके अलावा आप जो भी लाइन ड्रॉ करो, यहां से ड्रॉ करोगे, यहां से ड्रॉ करोगे, यहां से ड्रॉ करोगे, ये कभी इस पे नहीं आएगा। द ओनली लाइन विल पास थ्रू दिस इज वन। तो ये आप बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, सिंस इट इज अ एक्सियम, सिर्फ में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? ओनली वन। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? ओनली वन। If P is a point outside a line L, then one and only one line can be drawn through P which is parallel to L. देखिए क्या है, इसको देखिए। ये मान लीजिए आपका लाइन L है। क्या है ये लाइन? L। और मान लीजिए आपका ये पॉइंट है P। अब इस P से, जैसा कि आपको पता है, इनफिनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बट एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। द ओनली वन लाइन, यू कैन ओनली ड्रॉ वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू P which will be parallel to L. So this is the fifth axiom which you have to remember. Two distinct lines cannot have more than one point common. अब two distinct lines है, मान लीजिए एक लाइन है L और दूसरा लाइन है ब्लैक लाइन। अब देखिए, या तो ऐसा हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक ब्लैक लाइन है और एक रेड लाइन है। एक ये केस हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि एक रेड लाइन है और एक ब्लैक लाइन इसके ऊपर है। तो इसमें आप कह सकते हो ये दोनों जो लाइन है, इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस में आप कह सकते हो बोथ लाइंस आर सेम, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट लाइंस, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट लाइंस। डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट कौन से हैं? ये केस में है और इस केस में। इस केस में डिस्टिंक्ट है और इस केस में डिस्टिंक्ट है। इस केस में क्या हो गया? ये दोनों पैरेलल हो गए। क्या हो गया? डिस्टिंक्ट में पैरेलल हो गए। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ, कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? नो कॉमन। दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? नो। तो नो कॉमन पॉइंट। और यहां पे देख सकते हैं ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि टू लाइंस की क्या क्या केस हो सकती है। दो लाइन या तो पैरेलल हो सकते हैं, दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या दो लाइन या तो कोइंसिडेंट हो सकते हैं। जब दो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो उसे हम डिस्टिंक्ट नहीं कहते हैं। दो लाइन जब कोइंसिडेंट होते हैं तो उसे हम डिस्टिंक्ट नहीं कहते हैं। दो लाइन जब पैरेलल या इंटरसेक्टिंग होते हैं तो हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनकी मुलाकात कहीं पे नहीं होती, तो आप कह सकते हैं नो कॉमन पॉइंट। और दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो उनके पास सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है, जो मैंने अभी कंकरेंट में भी आपको सिखाया। सातवां एग्जाम जो आपको ध्यान में रखना है कि टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, इफ आई एम पैरेलल टू यू एंड यू आर पैरेलल टू रमेश, देन रमेश एंड आई आर ऑल्सो पैरेलल। मतलब अगर ब्लैक इज पैरेलल टू रेड and red is parallel to green, सोचिए, देखिए, black is parallel to red and red
is parallel to green, इन दोनों से आप कह सकते हो black will be parallel to green. तो आप देख सकते हो कि green और black भी parallel होंगे. Two lines which are both parallel to the same line are parallel to each other. तो आप देख सकते हैं black red से parallel है, green red से parallel है, इसका मतलब black और green दोनों parallel हैं. डेफिनेशंस में देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन जो आपको ध्यान में रखना है वो है कोलिनियर पॉइंट्स का. कोलिनियर, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं क्योंकि दो पॉइंट से आप, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा आप एक यूनिक लाइन बनाओ करते हैं. तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये दो पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, क्योंकि दुनिया की सारी दो पॉइंट्स एक प्लेन पे कोलिनियर होती है. तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स के बारे में, कि कब 3 या 3 से अधिक पॉइंट कोलिनियर कहलाएगी. 3 या 3 से अधिक पॉइंट कोलिनियर तभी कहलाएगी जब तीनों एक लाइन पे पाए जाएंगे. तो सिर्फ आपको भाषा समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, वही डेफिनेशन हो जाएगा. सो कोलिनियर पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम. अगर मैं कहूं, एग्जांपल देखिए, जैसे ये कहूं ये तीनों पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा क्योंकि ये तीनों ए बी सी एक लाइन पे कर रहा है. अगर आप देखें ए बी और सी यहां है, तो आप देख सकते हैं ए बी, सी बाहर चला गया इस लाइन से, सी बाहर चला गया, तो आप कह सकते हैं ये हो गया है नॉन कोलिनियर. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज पढ़ी थी, आई एम श्योर आपको पता है. तो आपसे कोई पूछता है कोलिनियर पॉइंट, तो आपको घबराना नहीं है. कनकरेंट लाइन, अभी मैंने आपको बताया था 2 3 दो इंटरसेक्टिंग लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगे ही, लेकिन कनकरेंसी की बात 3 पे होगी. तो जब 3, आप 2 भी कह सकते हो, 2 और मोर लाइंस, या आप कह सकते हो 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कनकरेंट, क्योंकि 2 लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं. तो आपको ये मेंशन कर सकते हैं कि 2 और मोर देन 2 लाइंस आर सेड टू बी concurrent if there is a point which lies on all of them. So that's a common point. और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी. आपने याद होगा, आपने ट्रायंगल चैप्टर में मीडियन जरूर पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि मीडियन, 3 मीडियंस सेंट्रॉइड पे मिलते हैं. आई एम श्योर आपने क्लास 7th 8th में ज्योमेट्री में पढ़ा है. तो जो सेंट्रॉइड होता है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, और वो तीनों मीडियंस क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं. अगर आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी से एग्जांपल लूं, तो अगर आपको याद हो कि गंगा, जमुना, सरस्वती जो कि अब खो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द ड्राउट एंड ऑल, तो आपको पता होगा इलाहाबाद में तीनों का संगम होता था. तो ऑल द 3 वर कंकरेंट, यूज्ड टू मीट एट इलाहाबाद. तो आप कह सकते थे कि इलाहाबाद वाज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फॉर गंगा, जमुना एंड सरस्वती. 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट. अभी हमने बात की थी 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे जब एक कॉमन पॉइंट होगा. 2 लाइन जब पैरेलल होंगे तो नो कॉमन पॉइंट होगा. एक लाइन पे जब दूसरा लाइन ऊपर होगा तो दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, राइट. पैरेलल लाइंस, द स्ट्रेट लाइन विच लाइन. देखिए सारे डेफिनेशंस याद करने बहुत जरूरी हैं. आपका प्रॉपर क्विज होगा जिसमें आपके डेफिनेशन लिखने होंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को याद करना है, समझना है. बिल्कुल भी इसको मिस आउट नहीं करना है. बच्चे अक्सर मैथ्स में ये सब चीजें छोड़ के सीधे सॉल्व करने लग जाते हैं प्रॉब्लम. तो कहीं ना कहीं आप बहुत दिक्कत में फंस जाओगे अगर आप इस डेफिनेशंस को याद नहीं रखोगे. स्ट्रेट लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट ऑन प्रोड्यूसिंग. आपको अभी मैंने बताया ये दोनों लाइन जब कभी नहीं मुलाकात होगी, या आप कह सकते हो दोनों इन्फिनिटी पे मिलेंगे, तब आप कह सकते हो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, आप कैसे कह सकते हो कि 2 लाइन पैरेलल हैं, जब आप देख सकते हो कि डिफरेंट स्टेजेस पे दोनों की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है. जब तीनों डिस्टेंस सेम हो जाती है तो आप कह सकते हो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3. इसका मतलब है L1 L2 इज पैरेलल. तो आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम. इफ 2 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू एनी अदर लाइन दे आर पैरेलल. ये हमने अभी एग्जाम में बात किया था ट्रांजिटिविटी वाली की. इफ ब्लैक इज पैरेलल टू रेड एंड इफ green is parallel to red, it means black and green would also be parallel. लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क होता है. लाइन आपका, इसका कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होता. यहां पे अगर आप कट कर दो और ये लेंथ फिक्स कर दो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपने क्लोज कर दिया, ये आपने क्लोज कर दिया. जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया, आपने लाइन से क्या बना दिया, लाइन सेगमेंट. सो गिवन 2 पॉइंट्स A and B on line A connected part of the system.
तो ये जो है, अगर देखिए आप पूरा देखिए, ये पूरा लाइन था, लेकिन ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन डू नॉट हैव एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स, लाइन डू नॉट हैव फिक्स लेंथ, लाइन सेगमेंट हैव फिक्स लेंथ, राइट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर आपके पास लाइन सेगमेंट ये है ए बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, तो इस इन दोनों के बीच में अगर कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी कहीं पे भी पॉइंट ले लो, दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो अ पॉइंट आर इज कॉल्ड एन इंटीरियर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इफ आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू, बट आर इज नाइदर पी नॉर क्यू। ऑफ कोर्स यहाँ पे पी क्यू का एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे पी क्यू ले लिया है, और आर यहाँ पे है। आर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन पी पे और क्यू पे नहीं होगा, पी पे और क्यू पे नहीं होगा, पी और क्यू के बीच में कहीं भी होगा, तो आप कह सकते हो आर इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये सारे डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसकी स्लाइड्स में भी, आपके लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लेक्चर स्लाइड्स डाल दूंगा, सो दैट यू कैन हैव अ लुक। ओके, two lines definition, what we have congruence of line segments. When do we say two line segments are congruent? AB और CD को congruent कब कहेंगे? जब, जैसे मैं देखूं, बात करूं, ये दो पेन है, क्या ये दोनों पेन लाइन सेगमेंट की तरह कंसिडर कर लेते? तो क्या ये दोनों पेन कॉन्ग्रुएंट है? तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे को हाइड नहीं कर रहा। मैं इधर से देखूं तो ब्लैक दिखता है, इधर से देखूं तो सिर्फ व्हाइट दिखता है, इधर से देखूं तो ब्लैक व्हाइट दोनों दिखता है, इधर से देखूं तो सिर्फ व्हाइट दिखता है। तो इसका मतलब व्हाइट जो है ब्लैक से बड़ा है। लेकिन जब कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए कि दो पेन है, वो इधर देखो तो व्हाइट दिखे, इधर देखो तो सिर्फ ब्लैक दिखे, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टोटली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दोनों का लेंथ इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दो द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के पूरे ऊपर आ जाते हैं, और पीक्यूआर जब ट्रायंगल एबीसी के पूरे ऊपर आ जाते हैं। तो जब एबीसी पीक्यूआर के ऊपर आ जाते हैं तो पीक्यूआर नहीं दिखता, जब पीक्यूआर एबीसी के ऊपर आ जाते हैं तो एबीसी नहीं दिखता। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो आप कहते हो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। उसके लिए आपने डिफरेंट थ्योरम्स पढ़ रखा है ऑलरेडी। सेम वे दो लाइन सेगमेंट्स कब होंगे? एबी और सीडी कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब एबी के ऊपर सीडी डाल दो तो सीडी ना दिखे, जब सीडी के ऊपर एबी डाल दो तो एबी ना दिखे। ये कहानी कब मुमकिन है? जब दोनों का लेंथ सेम हो। In other words, we can say two lines are congruent if their lengths are same. Distance between the 2 points, the distance between the 2 point P and Q is the length of the line segment. अगर आपसे कोई कहे ये P है और ये Q है, दोनों के बीच का लेंथ निकाल दीजिए, तो आपको पता है आपको शॉर्टेस्ट लेंथ जो कि स्ट्रेट लाइन है ये कैलकुलेट करना होगा। ये आपने अगर 7 यूनिट कहा तो आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 7 यूनिट। आप ये सारी चीजें आई एम श्योर समझ रहे हैं। रे क्या होता है? जिस तरीके से लाइन सेगमेंट में आप देख रहे थे कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स थे ए और बी, लाइन सेगमेंट्स में दो एंड पॉइंट थे ए और बी। जब लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ से एक्सटेंड किया जा सके, एक ये पी है और ये एक्सटेंड हो रहा है, क्यू आगे बढ़ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रे। A line segment AB when extended indefinitely in one direction is called ray AB. It has one end point. इसको कैसे शो किया जाता है? इसको ऐसे शो किया जाता है, PQ पे आप ऐसे कर दो। लाइन सेगमेंट को कैसे शो किया जाता है? लाइन सेगमेंट को आप ऐसे कर दो। जब आप AB को ऐसे शो कर देते हो तो इसका मतलब होता है लाइन AB, मतलब एक ऐसा लाइन जिसमें AB एग्जिस्ट करता है बट वो एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनाइटली। रे का भी लेंथ इन्फिनाइट होता है बिकॉज इट हैज नो डिफरेंट लेंथ, आप इसको जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। Opposite ray, two rays AB and AC are said to be opposite if they are collinear and point A is the। अगर मैं कहूं ये आपका A है और ये B है और ये कहूं C है, ये दो रे अपोजिट तब कहलाता है जब C, A और B तीनों क्या हो जाए? तीनों कोलिनियर हो जाए। जब ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, C, ए और बी, जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो आप कह सकते हो ए बी रे और ए सी रे बोथ द रेज आर अपोजिट रेज। एंगल, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। अब देख रहे हो यहां पे कोलिनियर था ए बी, लेकिन अगर आप देखो कि ए एक पॉइंट है, यहां से आपने एक्सटेंड कर दिया बी,
और यहां से आपने दूसरा रे एक्सटेंड कर दिया सी। तो ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं एंगल। तो आप कह सकते हो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। आप देख सकते हो ए बी एक रे है और ए सी एक रे है, दोनों नॉन कोलिनियर हैं। कोलिनियर जब हो जाता है तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और इसे कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ए बी और ए सी जो है वो आर्म्स ऑफ द एंगल है। ये मेजर कैसे करते हैं इसकी हम बात करेंगे आगे सेक्शन में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि दो रे विद अ कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं और इसे आर्म्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल। एंगल एडिशन एक्सियम। एंगल के लिए एक्सियम क्या है? इफ x इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल BOC। सबसे पहले मैं एंगल BOC आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लीजिए एंगल BOC है, ठीक है। सिंस आप देख रहे हो एंगल BOC, तो कॉमन आर्म्स विल बी B। यहां पे मैंने O, कॉमन वर्टेक्स क्या होगा O, ये क्या हो गया C। तो आप कह सकते हो दिस इज योर एंगल BOC। आप ये जो रीजन होगा, ये दिस रीजन इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। दिस रीजन इज कॉल्ड इंटीरियर। इसके बाहर चले जाएंगे तो इस रीजन को आप क्या कह सकते हो, अगर आप यहां पे इसको एक्सटेंड कर दो और यहां पे आप एक्सटेंड कर दो, तो इस रीजन को आप कह सकते हो दिस रीजन कैन बी कॉल्ड, दिस येलो रीजन कैन बी कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ एंगल BOC। और इसमें आप कहीं पे भी लेट से एक एक्स पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट है इंटीरियर पे, तो मैंने यहां पे एक एक्स पॉइंट ले लिया। अब देखिए क्या करोगे, अब आप एक्स को ओ से मिला दो, मिला दिया, राइट। अब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, कर दिया, ये एक नया रो हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो एंगल था, ये जो एंगल BOC था, ये जो एंगल BOC था, इसको आप कह लो, मान लो इसे कह लो थीटा। क्या कह लो, थीटा। और इस एंगल को आप कह लो अल्फा, इस एंगल को कह लो बीटा। तो आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये आपके लिए एक्सियम की तरह सर्व करेगा, आपको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट। राइट एंगल, किसी भी एल शेप को जब आप एल शेप देखते हो, दिस एल शेप, दिस एल शेप इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या कहते हैं इसे हम, राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल, अब इसको मेजरमेंट का कहानी मैं जब समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझाऊंगा कि इसको 90 डिग्री कहते हैं। ये जो एल शेप है ना, इसको हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट कुछ ऐसा होगा, एकदम ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों के बीच में कुछ इंक्लिनेशन है। वो जो, जब हम राइट एंगल को, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कितने पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में, तो जो ईच पार्ट का इंक्लिनेशन होगा उसे हम डिग्री कहते हैं। ईच पार्ट को क्या कहते हैं हम, डिग्री। हम लोग मेजरमेंट अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आपने वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट को डिग्री का, तो आप कहते हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कहते हैं, 90 डिग्री। अब एक डिग्री अगर आप माइक्रोस्कोप उठा के देखेंगे तो एक डिग्री कुछ ऐसा लगेगा, नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। यू हैव टू लुक इनटू लाइक अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप देखेंगे कि दोनों एंगल के बीच में एक डिग्री है, तो आप उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। किस पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट्स में। तो हर इक्वल पार्ट को आप कहते हो मिनट। क्या कहते हो, मिनट। तो आप कहते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहां से ऐसे डिफाइन करते हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर से आप सुपर माइक्रोस्कोप निकालोगे तो आपको 1 मिनट के बीच में इंक्लिनेशन दिखाएगा, 1 मिनट के बीच में इंक्लिनेशन दिखेगा। आप 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट से डिवाइड करोगे और हर एक पार्ट को क्या कह दोगे, सेकेंड। तो आप कह दोगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मैं आपको फिर से यहां पे झटपट लिख देता हूं कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने कहा वन राइट एंगल को आपने 90 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया, तो आप कह दिया 1 राइट एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। 1 डिग्री को आपने 60 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया, तो आपने कह दिया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर आपने 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया, तो आपने कह दिया 60 सेकेंड्स। इस तरीके से आप इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। एक रेडियन टर्म भी है, वो भी आप सीखेंगे। सो डोंट वरी, हम लोग सारी चीजें बड़े आराम से कवर करेंगे। एक्यूट एंगल, आपको पता है जो कोई एंगल, जब एंगल 0 से 90 डिग्री हो, जब आप कोई एंगल देख रहे हो जिसका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री है, अगर आप, ये एल शेप है, तो आप इसके इंटीरियर में, इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट आप अगर आप लेते हो, इस येलो रीजन में आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, राइट एंगल के आप इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेते हो,
तो आप क्या कहोगे, आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, ये x, तो जो आपका जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो भी होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। मतलब जीरो से, अगर ये अल्फा है तो अल्फा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जब आपका अल्फा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आपको देखना होगा कि अगर आपने ये राइट एंगल बना दिया है, राइट, और आप इसको एक्सटेंड कर दो इधर की तरफ, इसका अपोजिट रे ले लो, और आप जब इस रीजन में एंगल बना देते हो, इस रीजन में एंगल बना देते हो, कोई भी पॉइंट ले लेते हो, लेट्स से दिस इज कॉल्ड, लेट्स से दिस इज कॉल्ड P, लेट्स से दिस इज कॉल्ड O। तो अगर आप यहां पे कोई Q पॉइंट ले लेते हो तो ये जो POQ बनेगा, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, 90 डिग्री से, लेट्स कॉल दिस एज थीटा। सो थीटा जब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल आपको पता चल चुका होगा अब तक, ये आपका राइट एंगल है, और अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं, सॉरी, अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, लेट्स नेम इट, लेट्स कॉल दिस एज x, लेट्स कॉल दिस एज o, लेट्स कॉल दिस एज y। तो ये जो x और y है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ये एंगल आप देख सकते हो, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेट एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। तो आपने एक्यूट समझा, आपने राइट समझा, आपने ऑब्ट्यूज समझा, आपने स्ट्रेट समझा, राइट। अब देखिए आगे, स्ट्रेट के बाद आ जाता है रिफ्लेक्स। मतलब अगर आपने यहां तक की कहानी सीख ली, इस रीजन की कहानी सीख ली थी, आपने इस रीजन की कहानी सीख ली थी। अब आपके पास रीजन जो बचा है वो है, सॉरी, आपने येलो और ग्रीन रीजन को सीख लिया था और बाउंड्री को भी सीख लिया था, है ना। सॉरी, आपने येलो रीजन भी सीख लिया, ग्रीन रीजन भी सीख लिया, और बाउंड्री, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल भी सीख लिया। अब आज ये देखते हैं, अगर आप नीचे कहीं पे एंगल लेते हो, आप कहीं पे नीचे एंगल लेते हो, यहां पे कहीं पे पॉइंट ले लेते हो, तो अगर मैं कहूं ये आपका x है, ये आपका O है, और आप यहां से कहीं खींच लेते हो, ये मान लो आपका Z है, तो XOZ एंटी क्लॉकवाइज, आप एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, याद रखना, आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हो। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटी ऐसे समझो कि एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ये आगे पता चलेगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना कि पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, तो बस ये देखना है कि हम हमेशा एंटी क्लॉक मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल डेफिनेटली 180 से बड़ा हो गया, इट कुड बी मोर देन 180 डिग्री, और ये कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। So reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree is called a reflex angle. इसको और बेटर तरीके से अगर लिखा जाए, लेट्स से ये अगर आपका साई एंगल है तो फाई एंगल होना चाहिए 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल का क्या मतलब होता है, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है, ये अगर आपका स्ट्रेट लाइन है, ये रो है, और आप लेट्स से कंप्लीट अपने एक आर्म को सर्कल घुमा देते हैं, तो ये जो कंप्लीट सर्कल बन जाता है, तो जो आपका आर्म है इसके ऊपर आ जाता है। तो जब इसके ऊपर आ जाता है तो ये जो मेजरमेंट होता है, ये जो मेजरमेंट होता है कंप्लीट मेजरमेंट, दैट इज वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में देखिए कितने राइट एंगल है, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 90 डिग्री, क्या बन गया, 360 डिग्री। सो वन कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज। जल्दी जल्दी आज डेफिनेशन करते हैं, ये सारे डेफिनेशन को समझ लीजिए, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस और थ्योरम्स करेंगे। सो टाइप ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल
का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। याद रखना, दो एंगल का सम, दो डिफरेंट एंगल, अगर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दो एंगल अगर मान लो ये है 70 डिग्री और ये है 20 डिग्री, तो 70 प्लस 20 90, ये दोनों को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये है 75 डिग्री और ये है 20 डिग्री तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहेंगे। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सेम वे हम सप्लीमेंट्री क्या होगा, जब आप दो डिफरेंट एंगल देखोगे, एक ये एंगल हो गया और एक एंगल ये हो गया, सॉरी, और लेट से एक एंगल ये हो गया, ऐसे देखते हैं। तो लेट से ये दोनों एंगल अगर आप देखते हैं, अगर ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है अगर 130 डिग्री, तो आप कह सकते हैं दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। ये एंगल अगर 125 डिग्री है तो आप कहेंगे ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री होता है तभी जब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दोनों सेम आर्म शेयर कर सकता है, अगर जब दोनों आर्म सेम शेयर करेगा तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, और जब दोनों आर्म शेयर नहीं करेगा तो भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स में, मतलब आप लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल का एक एग्जांपल हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अभी टाइप ऑफ एंगल्स में ही चल रहे हैं। अगर आपके पास ये एंगल है और मान लीजिए आप एक एक्सटीरियर पॉइंट एक्स लेते हो और आप यहां से एक एंगल ड्रॉ करते हो, तो ये था आपका लेट से पी ओ क्यू, और आपने एक ये ड्रॉ कर दिया एक्स। ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए 40 डिग्री और 40 डिग्री है, तो मतलब क्या हुआ, दोनों का मेजरमेंट बराबर है, बाइसेक्ट कर दिया। तो आपने कहा एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल QOX। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि OX इज द एंगल बाइसेक्टर। सेम वहां पे लिखा अरे OX इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OAB if X is a point in the interior of angle AOB and angle AOX is equal to angle BOX। वही चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। मतलब क्या हम इस दोनों एंगल को एडजेसेंट कहेंगे? यस, व्हाई? बिकॉज दे हैव द सेम वर्टेक्स एंड दे हैव द कॉमन आर्म। देखिए एक्स ओ वाई जेड, तो एंगल एक्स ओ वाई और एंगल वाई ओ जेड, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, इनका एक कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, तो हम इन दोनों को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। लेकिन ये जो ओ वाई है ये जरूरी नहीं कि एंगल बाइसेक्टर हो, तो आप एंगल बाइसेक्टर को कह सकते हैं कि हाँ ये भी एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल है, ये भी एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल है। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसा कि अभी हमने सप्लीमेंट्री में एक स्पेशल केस बात की थी, जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो और यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो ये एंगल और ये एंगल, लेट से ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 130 डिग्री, तो डेफिनेटली ये दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं। एट द सेम टाइम अगर ये दोनों कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, इन द अदर वर्ड दे आर एडजेसेंट ऑल्सो, तो हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप उसको कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल्स अबाउट अ पॉइंट, अभी हमने बात किया था कि जब आप एंगल अबाउट अ पॉइंट, तो एक कंप्लीट एंगल जो आप लेते हो दैट इज बेसिकली 360 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने जानते हैं, अगर मैं ये दो लूं तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, दीज टू आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज टू आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल, ये हम प्रूव कर देंगे। सो लेट्स कॉल इट अ डे हियर। अभी हमने सारे रिजल्ट्स किए, अब हम थ्योरम्स करेंगे विच नीड्स प्रूफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम्स और एग्जांपल्स करेंगे और आगे जो हमने कोर्स का ओवरव्यू किया है उस पर करेंगे। आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है ज्योमेट्री सेक्शन में, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, ताकि मैं चीजों को अच्छे से सिस्टमाइज तरीके से बढ़ सकें। उसके बाद आप देखिएगा यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री।
तो जब इस चीज को अगर हम सॉलिड तरीके से सॉलिडिफाई कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगेन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।